नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5th द हैप्पी प्रिंस पार्ट 2 आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ही पास्ड बाय द cathedral tower where the white marble angles were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last, he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool feels, said the boy. I must be getting better. And he sank into delicious slumber. निगल ने राजकुमार की तलवार से बड़ी रूबी निकाली और वह शहर के छतों के ऊपर अपनी चोंच में उसके साथ उड़ गया। वह गिरजाघर की मीनार से होकर गुजरा जहाँ सफ़ेद संगमरमर का गुंबद खुदा हुआ था। वह महल से गुजरा और नाचने की आवाज़ सुनी। एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर निकली। मुझे उम्मीद है कि स्टेट ड्रेस के लिए मेरी ड्रेस समय पर तैयार हो जाएगी, उसने कहा। मैंने फूलों की उस पर कढ़ाई करने का आदेश दिया है, लेकिन सीमस्ट्रेस बहुत आलसी है। वह नदी के ऊपर से गुजरा और उसने लालटेन को जहाज़ों के मस्तूल पर लटका हुआ देखा। अंत में वह गरीब महिला के घर आया और अंदर देखा। वह लड़का अपने बिस्तर पर बुखार से उछल रहा था और माँ सो गई थी। वह बहुत थक गया था। उसने हाँफते हुए और महिला की थिरकन के पास मेज पर पड़ी माणिक बिछा दी। फिर उसने अपने पंखों से लड़के के माथे को सहलाते हुए धीरे से बिस्तर के चारों ओर उड़ान भरी। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, लड़के ने कहा। मुझे बेहतर होना चाहिए, और वह एक स्वादिष्ट नींद में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, her remarked, but I feel quite warm now. Although it is so cold, that is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the mountains and sat a long time on top of the church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. फिर निगल ने हैप्पी प्रिंस को वापस उड़ा दिया और उसे बताया कि उसने क्या किया है। यह उत्सुक है, उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन मैं अब काफ़ी गर्म महसूस करता हूँ।
हालांकि यह बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक अच्छी कार्रवाई की है, राजकुमार ने कहा। और छोटा निगल सोचने लगा और फिर सो गया। हमेशा सोचकर उसे नींद आ गई। जब दिन टूट गया तो वह नदी में जा गिरा और नहाने लगा। आज रात में मिस्र जाता हूँ, निगल ने कहा, और वह उच्च संभावनाओं पर आत्माओं। उन्होंने सभी स्मारकों का दौरा किया और सच के शीर्ष पर लंबे समय तक बैठे रहे। जब चांद उगा तो उसने हैप्पी प्रिंस को वापस उड़ा दिया। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. क्या आपके पास मिस्र के लिए कोई कमीशन है? वह रोया। मैं बस शुरू कर रहा हूँ, निगल निगल, थोड़ा निगल, राजकुमार ने कहा। क्या आप एक रात साथ में रहेंगे? मैं मिस्र में इंतज़ार कर रहा हूँ, निगल ने जवाब दिया। निगल, थोड़ा थोड़ा निगल, प्रिंस ने कहा। शहर भर में मैं एक युवा व्यक्ति को एक गैरेट में देखता हूँ। वह कागजों से ढके हुए डेस्क पर झुक रहा है और उसकी तरफ से ग्लास में मुरझाए हुए वॉयलेट का एक गुच्छा है। उसके बाल भूरे और कुरकुरे हैं और उसके होंठ अनार के समान लाल है और उसकी बड़ी और स्वप्नप्रिय आँखें हैं। वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह किसी भी अधिक लिखने के लिए बहुत ठंडा है। निगल ने कोई आग नहीं है और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ravi to the young playwright. Alas, I have no ravi now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India and 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. मैं एक रात आपके साथ इंतजार करूंगा, निगल ने कहा, जो वास्तव में एक अच्छा दिन था। उसने पूछा कि क्या उसे युवा नाटककार के लिए एक और माणिक लेना चाहिए। अलास, मेरे पास कोई माणिक नहीं है, राजकुमार ने कहा। मेरी आंखें वे सभी हैं जो मैंने छोड़ दी है। वे दुर्लभ नीलम से बने हैं जो 1,000 साल पहले भारत से बाहर लाया गया था। उसने निगल को उनमें से एक को गिराने और इसे नाटककार के पास ले जाने का आदेश दिया। वह इसे जौहरी को बेच देगा और जलाऊ लकड़ी खरीदेगा और अपना नाटक समाप्त कर देगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret.
प्रिय राजकुमार निगल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह रोने लगा। निगल निगल थोड़ा निगल, राजकुमार ने कहा, जैसा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तो निगल ने राजकुमार की आंख को बाहर निकाल दिया और युवक के पास उड़ दिया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। मैंने आपके लिए कुछ कंप्रहेंशन क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।